Today we will study di-substituted benzene derivative. Suppose two substitutions are present on derivatives or on benzene ring, then how we have to name the compound? See, common names of three possible isomers of di-substituted benzene derivatives are given using one of the prefixes called as ortho, meta, para. See, if ortho is there, then we will use the letter O. मेटा के लिए M यूज़ करते हैं, पैरा के लिए P. And it is used when common names, we are writing common names. And if we are writing IUPAC nomenclature, we have to number the position of substituents. See, the first substituents is benzene ring is there, and we are knowing benzene ring is having 6-membered carbon atom. So over here the chlorine 2 substituted, that is 2 Cl atoms are attached to benzene ring. So we will number them as 1, 2. देखो हमें 1 कहाँ से स्टार्ट करना है कि जहाँ से लीस्ट सब्स्टिट्यूएंट रहे वहाँ से सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबरिंग है क्लॉकवाइज. सो फर्स्ट नंबर और 2 नंबर देखो आपको कैसे याद रखना है. 2, 3, 4 ये जो नंबरिंग है वो 2 पे है तो वो ऑर्थो है, 3 पे है तो मेटा, 4 पे है तो पैरा. OMP. इन दिस वे यू विल रिमेंबर 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 OMP ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन. सो इफ along with 1, 2 is there, then both are, देखो 1 पे जो है वो भी क्लोराइड है, 2 पे है वो भी क्लोराइड है, तो 2 क्लोराइड है, इसीलिए ये आता है डाइक्लोरोबेंजीन. सो व्हेन यू विल राइट डाउन IUPAC nomenclature, वी हैव टू गिव देम नंबर, दैट इज़ 1, 2 डाइक्लोरोबेंजीन. अगर IUPAC नाम नहीं कॉमन नेम लिखते हो तो हमें ऑर्थो प्रीफिक्स यूज़ करना है. ऑर्थो क्यों यूज़ किया है? बिकॉज क्लोरीन इज एट सेकेंड पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग, दैट्स वाई इट इज़ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. एंड सेकेंड में देखो 2 क्लोराइड आइटम्स आर देयर, सेम थिंग, बट हियर 1 इज एट 1 पोजिशन एंड सेकेंड इज एट 3rd पोजिशन. जो 3rd पे है उसे हम डिनोट करते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन या फिर 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन IUPAC nomenclature. And third structure is there. In that structure 2 substituents of chlorides are present. Here one is present at 1st position and second is present at 4th position. So 4th is para. So 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या फिर कॉमन नेम में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. If 2 substituents are different, then they enter in alphabetical order. अभी देखो यहाँ पे कैसे केस था कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम थे जैसे क्लोराइड, बट 2 substituents are different. then see the first structure. In first structure iodo and bromo 2 substituents are there, so we will number them in such a way that 1, 2, 3. हमें ऐसे नंबर ऐसे देना है कि इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को पहले आ जाए. दे विल एंटर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सो आयोडो और ब्रोमो में पहले ब्रोमो आता है, तो ब्रोमो से हम शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो 1 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 1 ब्रोमो 4 आयोडो. So 1 bromo 4 iodo benzene is the name of IUPAC form, and common name है तो it is 1, 4 पे है आयोडो, so it is para bromo iodo benzene. आपको ये याद रखना है 2, 3, 4 सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो ऑर्थो मेटा पैरा होते हैं. Next structure is in which chloro and nitro group is present as a substituent. Now chloro और nitro में कौन alphabetically first आता है? तो chlorine. So we will start the numbering from chlorine, that is 1, 2, 3.
थर्ड पे नाइट्रो आता है ना, अगर थर्ड पे नाइट्रो है सो इट इज़ OMP, M will come. So 1-chloro-3-nitrobenzene is the IUPAC name, and common name is metachloronitrobenzene. Okay. If one of the two groups gives special name to the molecule, then the compound is named as derivative of that special compound. Like chloroaniline, देखो chloro is a substituent and NH2 is also substituent, but benzene ring along with NH2 group, it is called as aniline. So it is 2-chloroaniline और orthochloroaniline. और यहाँ पे टोलिन कहा जाता है, जब अगर CH3 ग्रुप बेंजीन को अटैच होता है तो उसे टोलिन कहा जाता है. सो इट्स अ स्पेशल नेम. सो नाइट्रो ग्रुप इज़ अ सब्स्टिट्यूएंट टू टोलिन. सो कौन से नंबर पे नाइट्रो है, तो CH3 को 1 नंबर एज्यूम करेंगे, फिर नाइट्रो को 3 आएगा, 3 नाइट्रोटोलिन और M नाइट्रोटोलिन. दिस विल बी द नेम्स विल बी गिवन टू स्पेशल सब्सटेंसेस. लाइक OH ग्रुप है तो फिनॉल कहते हैं हम उसे. सो 4-ब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल, बिकॉज एट 4th पोजिशन Br इज अटैच्ड and OH group is there, that's why it is called as phenol. So you will write all these names, कि ये स्ट्रक्चर लिखेंगे आप और उनका नंबरिंग भी लिखो, और उसके नीचे IUPAC नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम्स. देन वी हैव ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स. ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मीन्स 3 सब्स्टिट्यूशन है, तब हम कैसे नेमिंग करेंगे. If more than 2 substituents are attached to benzene ring, numbers are used to indicate their relative position following the alphabetical order and lowest locant rule. In some cases, common names of benzene derivative is taken as a parent compound. For example, देखो यहाँ पे 3 है, तीनों भी सेम है, so we will write 1, 2, 4 ट्राईब्रोमोबेंजीन. अभी यहाँ पे देखो क्लोरो नाइट्रो नाइट्रो, क्लोरो को हम पहला नंबर देंगे, फिर नाइट्रो 2 और 4th पोजीशन पे अगेन 1 नाइट्रो. सो विल राइट द नेम 1-chloro-2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन. सी नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स, इसके बीच में हाइफन आता है और नंबर के बीच में कॉमा आता है. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. And then one more substituent is there. Here 3 substituents are there on benzene ring. 1 और 2 पे मिथाइल ग्रुप है और 4th पे ब्रोमो है. तो पहले मिथाइल से पहले B आता है, इसीलिए 4 ब्रोमो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन. नेक्स्ट देखो इसमें क्लोरो है, मिथाइल ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है. सो क्लोरो विल कम फर्स्ट, देन मिथाइल, देन नाइट्रो. सो क्लोरो का हम लिखेंगे, इन्होंने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया है, मिथाइल से स्टार्ट किया है. 1 मिथाइल, 2 क्लोरो, 4 नाइट्रो बेंजीन ऐसे. लेकिन इसमें क्लोरो और मिथाइल ग्रुप में पहले क्लोरो आता है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सो 2 क्लोरो, 1 मिथाइल, 4 नाइट्रो बेंजीन. नेक्स्ट इज़ कि जिसमें फिनॉल है, और 2 सब्स्टिट्यूएंट है कि जैसे Cl और नाइट्रो ग्रुप. सो 2 क्लोरो, 4 नाइट्रो फिनॉल. नाउ यहाँ पे देखो 3 Br ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है. NH2 ग्रुप है तो ये एनिलीन हुआ. एनिलीन को 3 सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे 3 Br है. सो 2, 4, 6 ट्राईब्रोमो एनिलीन. नाउ यहाँ पे एनिसोल है, देखो एनिसोल इज मिथाइल means OCH3 group is attached to benzene, then it is called as anisole. So it is substituted with chloro and methyl group. 2 chloro, 4 methyl anisole is the name of this compound. So these tri substituents you will write down along with their names.
Next we have to study, that is isomerism. Now the phenomenon of existence of two or more compounds possessing the same molecular formula is called isomerism. देखो isomerism का definition कैसे है? The phenomenon of existence of two or more compounds possessing the same molecular formula, मतलब उनका molecular formula same होता है लेकिन उसी molecular formula से दो या तीन या फिर ज़्यादा, उससे ज़्यादा कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर हम निकाल सकते हैं, उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं. Such a compounds are known as isomers of each other. Two types of isomerisms are observed in organic compounds, namely structural isomerism and stereoisomerism. When two or more compounds have the same molecular formula but different structural formulae, it is called as structural isomers. देखो जब molecular formula same है, structures different है, तो उसे कहते हैं structural isomerism. On the other hand, when different compounds have the same structural formula but different relative arrangement of groups or atoms in a space, structure formula देखो स्ट्रक्चर भी सेम है बट उसमें जो रिलेटिव्स अरेंजमेंट है एटम्स के या फिर ग्रुप स्पेस में, तो उसे कहते हैं स्टीरियोआइसोमर्स. Spatial arrangement of group of atoms, it is stereoisomers. So in this chapter we are going to look at the some details of only structural isomers. देखो यहाँ पे एक चार्ट भी दिया है कि आइसोमेरिज्म इज क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स. जैसे आइसोमेरिज्म two or more compounds with the same molecular formula, it is having two class, that is structural isomers and stereoisomers. तो structural isomers means क्या होते हैं? Two or more compounds with same molecular formula but different structural formula. same molecular formula है लेकिन structural formula different है. उसी का दूसरा पार्ट है stereoisomers. Two or more compounds with same structural formula but different spatial arrangement of groups. देखो यहाँ पे उनका डिफरेंस कहाँ पे आता है? स्पेशियल अरेंजमेंट में. अरेंजमेंट इस पोजीशन पे है, उस पोजीशन पे है, स्पेशियल अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, उसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स. नो स्टीरियो आइसोमर्स आर अगेन क्लासिफाइड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स. ये हुआ स्टीरियो आइसोमर्स का. लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है इसका अगेन क्लासिफिकेशन होता है 4 टाइप्स में. जैसे चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म. सो 4 parts are there that we are going to study somehow in detail. Okay, so structural isomers. When we see in the beginning in this chapter, the structural formula describes the sequence in which the constituent atoms of molecules are bonded and the nature of bonds between them. See, when two or more compounds have the same molecular formula but different structural formula, they are said to be structural isomerism or structural isomers of each other. So this phenomena is known as structural isomers. देखो उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मूला अलग होता है, लिखने में अलग अलग लिखा जा सकता है एक ही मॉलिकुलर फॉर्मूले से, तो उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. तो देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज फर्दर क्लासिफाइड एज चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म. तो उसमें से फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म. व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पैरेंट चेन of different carbon skeleton, it is referred as a chain isomerism. Such isomers are known as chain isomerism. For example देखो ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 CH3 and 2-methyl propane CH3 CH, इसको अटैच है CH3, ब्रांचिंग है और CH3. 2 chains
isomers of each other as they have different carbon skeleton and the same molecular formula. अगर इनका मोलिकुलर फार्मूला देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन उनका कार्बन स्केलेटन कैसे है? अगर हम स्ट्रेट चेन लिखते हैं तो ये ब्यूटेन है, अगर ब्रांचिंग लिखते हैं तो ये 2-मिथाइल प्रोपेन है. So this is called as chain isomerism. So this is the example that you will remember as a chain isomerism. बस आपको इनका एग्जाम्पल और डेफिनेशन याद रखना है. Position isomerism, the phenomenon in which different compounds having the same functional group at different position on the parent chain is called position isomerism. देखो इसमें कैसे होता है, the phenomenon in which different compounds having the same functional group, 2 compounds अलग है लेकिन उनका functional group same है, and different at position ऑन द पेरेंट चेन पे भी इनका पोजीशन अलग है. जैसे देखो 2 ब्यूटीन है, ब्यूट 2 इन है, मतलब सेकेंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है, एंड ब्यूट 1 इन फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है. आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एज दे आर हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला C4H8 एंड द सेम कार्बन स्केलेटन, बट डबल बॉन्ड्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट पोजीशन. तो पोजीशन उनका अलग है, डबल बॉन्ड का पोजीशन कहीं पे 1 है कहीं पे 2 है, लेकिन मॉलिकुलर फार्मूला क्या है? सेम है. सो दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमर्स. नाउ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. देखो द फिनोमिनन इन विच डिफरेंट कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिकुलर फार्मूला हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. इनका भी मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग रहेगा. जैसे देखो डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3 एंड इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH. सो बोथ आर हैविंग द सेम मॉलिकुलर फार्मूला C2H6O. हाँ, मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, लेकिन हम कैसे लिखते हैं इन्हें? एक तरफ लिखेंगे डाई इथाइल ईथर और दूसरी जगह पे लिखेंगे इथाइल अल्कोहल. सो हियर द फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट. इन ईथर द फंक्शनल ग्रुप इज -O- and in the alcohol its the functional group is -OH is the functional group. ऐसे इनका डिफरेंस आता है. नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म मीन्स the different compounds with the same molecular formula and same functional group but having unequal distribution of carbon atoms on either side of the functional group is referred as metamerism, and the isomers are called metamers. So for example ethoxyethane CH3CH2O CH2CH3, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उसके एक तरफ और दूसरी तरफ ये जो डिफरेंस आता है उसे कहते हैं मेटामर्स. देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ CH3CH2 ग्रुप अटैच्ड है, वो है इथॉक्सी इथेन. अगर हम मिथॉक्सी प्रोपेन लिखते हैं तो क्या होगा? CH3O CH2 CH2 CH3. मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है, कितना? कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1, लेकिन हम कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन को बीच में रखते हैं और यहाँ पे CH3CH2, दूसरी जगह पे भी CH3CH2 इक्वल है, और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं? एक कार्बन एटम को यहाँ से दूसरे साइड में शिफ्ट कर रहे हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस कॉल्ड एज मेटामेरिज्म. ओके, यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप आता है. दिस इज़ द डेफिनेशन. That's why it is called as metamers or metamerism. और next है tautomerism. Some compounds exist as mixture of 2 or more structurally distinct molecules which are in rapid equilibrium with each other. This phenomenon is known as tautomerism. Such interconverting isomers are called tautomers. In nearly all cases, it is the proton which shifts from one atom to another which gives the molecule called as tautomer.
देखो टोटोमर्स में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है, लेकिन प्रोटॉन का शिफ्टिंग हो जाता है, इंटर कन्वर्जन ये रैपिडली हो जाता है, इट इज़ अ रिवर्सिबल। जैसे ये कीटो फॉर्म में है, बाद में इनॉल फॉर्म में जाता है। देखो दो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। इन वन फॉर्म इट इज़ one carbon is bonded with hydrogen and another carbon is bonded with oxygen. Now what will happen, the carbon will attached with double bond and that hydrogen is shifted towards oxygen. So here enol form is there. तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन का रैपिडली शिफ्टिंग हो जाता है, इसीलिए इनका फॉर्म चेंज होता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे कीटोनिक फॉर्म है, बाद में अल्कोहल है, तो कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म। So this is tautomerism. So these are really interesting. You will learn all these things. For example, keto enol tautomers कहते हैं इसे. It is very common form of tautomers. It is found in carbonyl compound. Here a hydrogen atom shifts reversibly from alpha carbon of the keto form to oxygen atom of the enol form. देखो कार्बन अल्फ़ा कार्बन जो है, अल्फ़ा कार्बन्स का जो हाइड्रोजन है वहाँ से शिफ्ट होके कीटो फॉर्म का जो ऑक्सीजन है उसे अटैच होता है, और इसीलिए उसको इनॉल फॉर्म कहते हैं, अल्कोहल का फॉर्म, और ये कीटोन का फॉर्म। सो टुडे यू विल राइट ऑल दिस थिंग्स। ये चार्ट निकालो आप आइसोमेरिज्म का, और चेन आइसोमेरिज्म, इनका डेफिनेशन, एग्जाम्पल, पोजिशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामर्स, टोटोमर्स, इनका डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल आप लिखोगे। एंड दिस टॉपिक इज ओमिटेड 14.6 theoretical basis of organic reactions. It is omitted, so here the 14th topic is completed. Okay, you will read the topic again, and whatever I told you to write, you will read that also.